ہے وہ ہے نئی تہذیب اور اس کے شاعر ہیں اکبر الہ آبادی. کون ہے اس کے شاعر؟ اکبر الہ آبادی 1846 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے 1921 عیسوی میں انتقال کیا. تو آج سے 101 سال پہلے وہ اس دنیا سے چل بسا. یہ خاکہ میں اس لیے آپ کو پیش کرتا ہوں کیونکہ اس نظم کا جو عنوان ہے وہ ہے نئی تہذیب. جب انہیں نوجوانی کے عالم میں یہ نظم لکھی ہوگی تب اس کے سامنے ان کے سامنے اس زمانہ کا تہذیب و تمدن رہا ہوگا. لوگ کیسے رہن سہن کرتے تھے, کیسے کپڑے پہنتے تھے, بازار میں کیسے نکلتے تھے, ان کے سماج میں ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوتا تھا, عورتیں گھر سے باہر کیسے نکلتی تھی. تب انہیں خدشہ ہو رہا تھا کہ شاید ہمارے جو رسم و رواج ہے, ہمارا جو تہذیب و تمدن ہے, یہ اسی نہج پر نہیں رہنے والا. یہ وہ دور ہے پیارے بچوں جب اس قوم پر انگریزوں کا راج تھا. انگریزی سامراج ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے اور مغرب کی ہر چیز ہندوستان میں آہستہ آہستہ رائج ہوتی چلی جاتی. ان کی زبان بھی, ان کا رہن سہن بھی اور ان کے پوشاک بھی, ہر کوئی چیز. اسی کے پس منظر میں اکبر الہ آبادی نے یہ نظم لکھی ہے. اس کی پہلے ہم بلند خوانی کریں گے, یعنی ہم اونچی آواز میں پڑھیں گے, اس کے بعد مشکل الفاظ کی توضیح کریں گے, پھر ہم اس کا خلاصہ بھی پیش کریں گے. مجھے امید ہے کہ اگلے 19-20 منٹ آپ میرے ساتھ توجہ کے ساتھ گزاریں گے تاکہ اس نظم کے پس منظر میں جو بھی باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر ہو سکیں گے. ٹھیک بات ہے نا؟ تو پہلے میں اس سے پڑھتا ہوں. نئی تہذیب ہے اس کا عنوان. یہ موجودہ طریقے راہی ملک عدم ہوں گے. یہ موجودہ طریقے راہی ملک عدم ہوں گے. نئی تہذیب ہوگی اور نئے سامان بہم ہوں گے. نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے حسین اپنی. نہ ایسا پیچ زلفوں میں نہ گیسوں میں یہ خم ہوں گے. نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی. نہ گھونگھٹ اس طرح سے حاجبین یہ صنم ہوں گے. بدل جائے گا اندازے تبایا روزے گردوں سے. نئی صورت کی خوشیاں اور نئے اسباب غم ہوں گے. بہت ہوں گے مغلی نغمے تقلید یورپ کے, مگر بے جوڑ ہوں گے اس لیے بے تال و سم ہوں گے. ہماری اصطلاحوں سے زبان آشنا ہوگی. لغات مغربی بازار کی باقا سے ضم ہوگی. بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا میں. زیادہ تھے جو اپنے رزق میں وہ سب سے کم ہوں گے. کسی کو اس تغیر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا. ہوئے جس سال سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے. تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر. بہت نزدیک ہے وہ دن کہ تم ہوں گے نہ ہم ہوں گے. تو پیارے بچوں اس طرح ہم نے اس نظم کی بلند خوانی کی کچھ مشکل الفاظ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی. تو تہذیب ہوتے ہیں رہن سہن کا طریقہ. موجودہ تہذیب اور نئی تہذیب, آنے والی تہذیب. موجودہ تہذیب اس وقت کا رہن سہن. راہی ملک عدم. راہی چلنے والا, جو راستے پر چلنے والا ہے مسافر کو راہی کہتے ہیں. ملک عدم وہ دنیا جہاں سے کوئی واپس نہیں لوٹتا. تو بہم ہونا, میسر ہونا, زینت رعنائی سجاوٹ. اس طرح یہاں پیچ و خم جو بالوں میں وہ ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ ہلکے ہوتے ہیں, اسے پیچ و خم کہتے ہیں. بالوں میں خصوصاً عورتوں کے بالوں میں جو ٹیڑھا پن ہوتا ہے جو ہلکے ہوتے ہیں اسے بال و خم کہتے ہیں, پیچ و خم کہتے ہیں. تو یہاں زلف کن پٹی کے اوپر سے لٹکنے والے بال کو زلف کہتے ہیں. گیسو عورت کے وہ بال ہوتے ہیں جو وہ سر کے دونوں جانب ایسے کچھ ادھر رکھتی ہے کچھ ادھر رکھتی ہے, انہیں گیسو کہتے ہیں. خاتون کہتے ہیں عورتوں کو. پردہ کہتے ہیں حجاب کو, برقعے کو.
घूंघट, वो चादर या वो निकाब या वो साड़ी जो औरत अपने चेहरे को छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अमूमन हिंदू औरतें वो लंबी चादर पहनते हैं, जब किसी पराई मर्द के साथ बात कर लो तो वो सामने खींचते ताकि उसका चेहरा दिखाई न दे, उसे क्या कहते हैं? घूंघट। हाजिब कहते हैं पर्दे को, रूए सनम महबूब का चेहरा इस तरह है। तबाया तबीयत की जमा, दौरे गर्दू आसमान का चक्कर, गर्दू कहते हैं आसमान को इस तरह। असबाब सबब की जमा, मुगन्नी कहते हैं गाने वालों को। तकलीदी यूरोप की नकल उतारना, बेजोड़ जो आपस में मिलते न हो। ताल सम, ये मौसीकी में जब उभार आता है और जब धीमी आवाज आती है उसे ताल सम कहते हैं। मौसीकी इस्तिलाह है। इस्तिलाह कहते हैं किसी मखसूस इल्म में अल्फाज के माने अलग से होते हैं, उसे इस्तिलाह कहते हैं। अंग्रेजी में से टर्म कहते हैं। ना आशना होना, ना बलद होना, जिसकी को पहचान होगी। हाँ, लुगात की जमा है। लुगत कहते हैं डिक्शनरी को। तो मगरिबी लुगात मगरिबी यानी मगरिब की डिक्शनरी, मगरिब की लुगत। बाजार की बाका यानी बाजार में बोली जाने वाली जबान। हाँ, मियार शराफत का मियार। चश्मे दुनिया की आँख। हाँ, ज़ोम कहते हैं गुमान को। तगयुर कहते हैं तब्दील को। हिस्स होना, एहसास होना इस तरह। जीरो बम ऊंचाई और जो धीमापन उसे जीरो बम कहते हैं। फिर से ये मौसीकी की इस्तिलाह है। इनकलाब दहर, जमाने में जो इनकलाब बर्पा हुआ हो उसे कहते हैं इनकलाब दहर। तो ये कुछ मुश्किल अल्फाज थे इस नज़म के, जिनका मैंने थोड़ी थोड़ा को माने समझाई। बात समझाए ना? अब हम एक एक करके अशआर के बाइन से दूर जाने की कोशिश करेंगे और उनका मानी तलाशने की कोशिश करेंगे। ये मौजूदा तरीके राही मुल्क के अदम होंगे, नई तहजीब होगी और नए सामान बाकी होंगे। अकबर इलाहाबादी अपनी कौम से कहते हैं, अपने वतन के लोगों से कहते हैं कि ये जो मौजूदा तरीके हैं, रहन सहन के तरीके हैं, उठने बैठने के तरीके हैं, मिल जुलने के तरीके हैं, ये क्या होंगे? राही मुल्क के अदम होंगे। ये एक लंबे सफर पर निकलेंगे और उस सफर पर निकलेंगे जहाँ से कोई वापस नहीं आता। यानी ये एक दिन आप उस रास्ते पर निकल जाएंगे, उम्मूमन मौत के रास्ते पर अब ये निकलने वाली है। कौन? जो हमारे मौजूदा ताजीब है, अब ये मौत के सफर पर गामजन है, ज्यादा देर तक रहने वाले नहीं। ये ताजीब हो, इसके बाद हमारे रहन सहन का ढंग, लिबास पहनने का ढंग, बाजार में मिलने जुलने का ढंग नई तहजीब के तहत होगा और नए सामान हम होंगे। घबराए नहीं, उसके लिए हमारे पास नए सामान मैसर आएंगे। ये कपड़े तो नहीं रहेंगे, कुछ और होगा। ये साड़ी तो नहीं रहेगी, कुछ और होगा। शायद फिर लड़कियां भी पैंट पहनेंगे तो मैसर आएंगे वो चीज। तो शायद कहता है कि जो मौजूदा तरीका है लिबास पहनने का, जैसे जीने का, उठने बैठने का, ये अब खत्म होने वाले हैं और इसी जगह नए तहजीब के सामान हमारे पास मैसर आएंगे। नए उन्वान से जीनत दिखाएंगे हसीना अपनी। जो हमारी लड़कियां हैं, औरतें हैं, जिन्हें जीनत दिखाने का बहुत शौक होता है, वो हमेशा सज धज कर बाहर निकलते हैं। पुराने जमाने में सुरमा भी पहनते हैं और जेवर भी पहनते हैं, नए लिबास पहनते हैं, उन्हें जीनत दिखाने का बहुत शौक होता है। मगर फिर क्या होगा? नए उन्वान से दिखाएंगे, नए उन्वान से जीनत दिखाएंगे हंसी अपनी। या लड़कियां और ये औरतें फिर से अपने जेबाश की नुमाइश करेंगे, मगर एक नए तरीके से। न ऐसा पेच जुल्फों में, न गेसों में ये खम होगा। आजकल हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी जो औरतें हैं, ये खम लाती हैं गेसों में और लंबे बालों में। तो उन्हें कंघी कर करके उनमें खम लाते हैं, बाल पैदा करते हैं। और जो उनकी कनपुकली के ऊपर से ये जुल्फ रहते हैं उनमें भी खम लाते हैं। कब? इससे काम नहीं चलेगा, ये तो फर्शुदा बात हो चुकी होगी। निखातों में रह जाएगी पर्दे की ये पाबंदी। आजकल हमारी औरतें पर्दा पहनकर, निकाह पहनकर बाजार की जीनत बनती है
तब वो ऐसा नहीं करेंगे, तब कोई नहीं कहेगी कि आप पर्दा पहनकर क्यों बाजार नहीं निकलते, पर्दे की पाबंदी खत्म होगी, सब बेहिजाबाना बाहर निकलेंगे, न घूंघट इस तरह से हाजिर हुए सनम होंगे। इस तरह हिंदू औरतों को देखते हैं जब भी किसी पराये मर्द से बात करते हैं तो उस घूंघट को आगे करते हैं ताकि उसका चेहरा न दिखेगा। अरे ये भी खत्म होगा, मगरिब की देख देख के औरतें फिर सर पर घूंघट रखेंगे ही नहीं, तो जो चेहरा है ये वो छुपाएंगे, न खातूनों में रह जाएगी पर्दे की ये पाबंदी, खातूनों में औरतों में पर्दे की पाबंदी नहीं रहेगी, न घूंघट इस तरह से हाजिर रुए सनम होंगे। अरे महबूब का चेहरा फिर दूर से दिखाई देगा, घूंघट के पीछे छुपा भी नहीं देगा, बदल जाएगा अंदाजे तबाया गर्दों से, जमाना ऐसा चक्कर काटेगा, ऐसा तोड़ दिखाएगा जो हमारी तबीयतें हैं आज गवारा नहीं करती थी। लड़की पर्दे से बाहर आई, लड़की अपना चेहरा दिखाए, अरे ये तबीयत तो बदल जाएगी, फिर नई तारीफ आएगी, लोग उसी पर आए होंगे, बदल जाएगा अंदाजे तबाया गोरी गर्दों से। जमाने का चक्कर हमारी तबीयत को दूसरे में ढल देगा, नई सूरत की खुशियां और नई असबाब गम होंगे, लोग नित नई खुशियों की तलाश होंगे। आज की खुशियों पर लोग खुश नहीं होंगे, न आज के गम होंगे, नई तरह की खुशियां होंगी और नई तरह के गम होंगे। आज इस दौर में जब देखें अगर किसी दिन इंटरनेट बंद होगा तो लोग गम ज्यादा होते, तब ये न इंटरनेट था न फोन था, तब ये बातें नहीं हो सकती थी। बहुत होंगे मुगल में नगमई तकनीकी यूरोप के, आप देखेंगे तो ऐसे भी गाने वाले आज हमारे गाने वाले हैं, ये तो मशरकी मौसीकी गाते हैं, इसी से दिल को सुरूद बखरते हैं। तब ऐसे भी गाने वाले होंगे जो मगरिब की तकनीक में गाते होंगे, बहुत होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। जैसे आज हम देखते हैं रैप गाते हैं, हमारे कश्मीरी गीत अब नई तरह से गाते हैं, जैसे अंग्रेज लोग गाते हैं, तो बहुत होंगे मुगनी, बहुत से गाने वाले ऐसे होंगे जो मगरिब की तकलीफ में, अंग्रेजों की तकलीफ में अपनी इस जबान को ढालते होंगे और अपने गीत गाते होंगे, बड़े मगर बेजोड़ होंगे, इसलिए बेतालुसम होंगे, मतलब उन्हें वो बेजोड़ होंगे, उनकी मौसीकी में वो मिठास नहीं होगी, वो दूर से लक दिखेगी कि उनमें जोड़ के ताल होगा, सम होगा, जो मौसीकी इस्तिलाह है, न उभार होगा न वो धीमा पर होगा। इतना ही नहीं, हमारी इस्तिलाहों से जबान ना आशना होगी। आज जो इस्तिलाहें हमारे जुबान में है, जैसे हया कोई चीज है, जैसे घूंघट कोई चीज है, जैसे बुर्का कोई चीज है, जैसे पर्दा कोई चीज है, ये इस्तिलाहें जबान में कहीं भी मौजूद नहीं होगी। जो हमारी उर्दू जबान होगी कल कोई नहीं जानता होगी, ये भी कुछ ये एक इस्तिलाह है पर्दा नशी। तो जमाना आएगा कि पर्दा नशी के लफ्ज से भी लोग नाशना होंगे। लुगा के मगरबी बाजार की बाका से जम होगी, बाजार में जो लोग जबान बोलते हैं, आम जबान बोलते हैं, तो मगरिब की लुगात यानी अंग्रेजों की जबान उसमें जम होगी, ऐसे मिल जाएगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हम उर्दू बोलते हैं कि अंग्रेजी। इस तरह आज है, आज हर चीज का नाम अंग्रेजी है, इस तरह हमारी जुबान से बोल चुके हैं। इसका अंदाजा लगाया था आज से 120 साल पहले किसने, हमारी शायर अकबर शिरा आबादी ने। बदल जाएगा मियारे शराफत चश्मे दुनिया में, दुनिया की नजर में मियारे शराफत इज्जत किसे दी जाए, ये बदल जाए। अरे इज्जत आलिम को दीजिए, इज्जत बुजुर्ग को दीजिए, तो उस जमाने में शायद इज्जत अमीर को दी जाएगी, इज्जत रुपया वाले को दी जाएगी, जिसके पास बड़ी गाड़ी होगी उसको दी जाएगी। ये कहते बदल जाएगा मियारे शराफत चश्मे दुनिया में, दुनिया की नजर में इज्जत देने का मियार बदल जाएगा। तब जिनके पास दौलत होगी उनको शायद इज्जत दी जाएगी, ज्यादा के जो अपने में वो सबसे कम होंगे। हमारे ख्याल में जो सबसे ज्यादा इज्जत वाले थे शायद उस जमाने में वो कमतर समझे जाएंगे, उनकी इज्जत कोई नहीं करने वाला होगा। किसी को इस तगय्युर का हिस्सों का इंतकाम होगा। मसला ये है उस जमाने में किसी को
इस बदलाव का न हिस्स होगा, न एहसास होगा, न गम होगा। जमाना इतना बदल जाएगा, इतनी तब्दीली आएगी समाज में, मगर किसी को इस तब्दीली का एहसास होगा, न कोई इस पर गमजदा होता होगा कि हमारा जो मियार शराफत भी बदल गया, हमारा रहन सहन भी बदल गया। कोई इस पर पछतावा नहीं करता होगा। हुए जिस साल से पैदा उसी के जेर बम होंगे, वो जिस भी माहौल में पैदा होंगे वो उसी में डालते हुए खुशियां महसूस करते होंगे। उन्हें कोई भी चीज छीनने का एहसास नहीं होगा। वो अंग्रेज के लिए तब होंगे जिस तरह आज है। प्यारे बच्चों, तुम्हें इस इनकलाबी दहर का क्या गम है अकबर? फिर अकबर खुद से चलते, उसे पता कि जमाना तो अपनी चाल चलेगा, तो जमाना रुकने वाला नहीं। तुम्हें इस इनकलाबी दहर का क्या गम है अकबर? तुम्हें क्यों इस जमाने के इनकलाब की फिक्र है? तुम्हें इस इनकलाब दहर का क्या गम है अकबर? तुम्हें क्यों इस जमाने के इनकलाब की फिक्र खाई जाती है? बहुत नजदीक है वो दिन, तुम होंगे हम होंगे, बहुत जल्द तुम्हारी मौत वाक़ा होगी। तुम कितने साल और जियोगे? 10 साल 15 साल, इसके बाद तुम्हें मरना ही मरना है। मगर ये जो इस कौम को जिंदा रहना है, तुम्हें क्यों फिक्र है? मगर इस तरह हमारी ये नज़म कंप्लीट होती है। जो शायर होता है वो बहुत एहसास होता है, उससे बहुत विजनरी होता है, उसे पता होता है कि आगे क्या होने वाला होता है। शायर की हिसास सब कुछ देखती है, मुस्तकबिल में जानती है। अगर हम आज अपना मुहासबा करें, आज वो तमाम चीजें हैं, हम मगरबी तकलीफ में अंधे हो चुके हैं। यहाँ स्कूल तो आप वर्दी में आते हैं, इसमें ज्यादा लड़कियों की बात है। स्कूल में आप वर्दी में आते हैं, अगर अपने सीने पर हाथ रखते हैं कि क्या आप जब किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हो, क्या आप ऐसे कपड़े पहनते? नहीं, तो वहां मगरबी का पैंट पहना है। जब तक आपको वर्दी नहीं रखी, तमाम लड़कियां पैंट पहने स्कूल आते। हाँ, घर में स्कूल आपके साड़ी पहनकर आते हैं, मस्जिद कोई और जगह जाते हैं तो साड़ी सर पर नहीं रहती। तो इस तरह हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने उस मीरास को गंवाया। बात समझे ना? गंवा दी हमने वो मीरास जो असलाफ से पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान में को दे मारा। इकबाल ने भी कहा। तो ये शायर जो होता है, ये हमें ऐसा दिलाता है कि हमने क्या खोया है, हमने क्या पाया। पहले बच्चे मुझे अंदाजा कि आपको ये बातें समझ आ चुकी होगी। अब आप जो मैंने अल्फाज के माने बताए, मैं आपको फिर व्हाट्सएप पर भी सेंड करूंगा इंशाल्लाह। तो आप इसके कॉपी बनाएंगे, उसके बाद उन अल्फाज को सामने रखकर इस पूरी नज़म का आप खुलासा करेंगे। ठीक बात है ना? खुलासा कहते हैं कि अपने अल्फाज में लिखें। ठीक बात है ना? तो आज के इतना